हमें ट्रांजैक्शन में एक चीज बहुत जरूरी है कि ट्रांजैक्शन कितनी सीरियली वर्कआउट कर रहा है. That means a transaction comprises a sequence of operations which is consisting of read and write actions to the database, which are followed by commit or abort action. स्टूडेंट सीरियलाइजेबिलिटी में हमें एक तो शेड्यूल के बारे में जानना पहले जरूरी होता है कि व्हाट इज शेड्यूल. शेड्यूल मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस by a set of concurrent transactions that preserves the order of the operations in each of the individual transactions. ट्रांजेक्शन सपोज कीजिए T1 T2 अलग अलग है, तो पहला ट्रांजेक्शन में जो रीड हो रहा है उसके अंदर रीड एक्स कमा राइट एक्स. तो शेड्यूल का मतलब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरे का कुछ पार्ट शुरू हुआ, फिर हो सकता है प्रीवियस वाला दोबारा हो रहा है. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन शेड्यूल. मीन्स अ सीक्वेंशियल वे ऑफ द ऑपरेशन बाय सेट ऑफ कंकरेंट ट्रांजेक्शंस. And what is serial schedule? Students, serial schedule means a schedule where the operations of each transaction are executed consecutively without any interleaved operation from other transaction. Students, serializability जो होता है that is related to schedule and serial schedule. Like it is the concept in a transaction that helps to identify which non-serial schedule is correct and will maintain the database consistency. अगर कोई database के अंदर transaction में non-serial है तो उसको सही करना है scheduling के लिए, and will maintain the database to be consistent. It relates to the isolation property of the transaction in the database also. Serializability is the concurrency scheme where the execution concurrent transactions is equivalent to the transaction with execute serially. Means one transaction will be operating, then second one, then third one. Again, first one will also operate after the second and third, means midway. So that means that will be working on a serial manner. The 2 points here we have discussed, like some non-serial schedules may lead to inconsistency of the database, and serializability is a concept that helps to identify which non-serial schedules are correct and will maintain the consistency of the database. Now students, what are the characteristics of the serializability? एग्जैक्टली शेड्यूल्स को सीरियल बनाने के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिकवरेबल होना चाहिए, कैस्केडलेस होना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट होना चाहिए. ये ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स inside the database, inside the transaction is serializable. Now the schedule of the serializable. Student, a serial schedule is always a serializable schedule because any transaction only starts its execution when another transaction has already completed its execution. Means एक complete होने के बाद again दूसरा start कर रहा है, that means series पे चल रहा है. Am I right? That means continuity है एक के बाद दूसरे का. However, a non-serial schedule of transaction needs to be checked for serializability. Now student, we have to note down one thing. If a schedule of concurrent n transactions can be converted into an equivalent serial schedule, then we can say that schedule is serializable, and this property is testing serializability. Means ultimately we can say that whenever one transaction is going and after that another one is operating, then that is called serializability schedule. To test the serializability of a schedule, we can use the serialization graph. स्टूडेंट ग्राफ्स के अंदर हम एक ग्राफ को लेके चलते हैं. सपोज
अ शेड्यूल एस, कंप्लीट शेड्यूल को हमने एस माना है. फॉर द शेड्यूल एस वी कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ which is called as precedence graph. It has a pair like G. इस ग्राफ का फॉर्मेट V, E. V is the vertices of the graph and E is called the edges of that graph. Right? Vertices का मतलब nodes है उस ग्राफ का. The set of vertices contains all the transactions participating in the S schedule. And the set of edges means all the edges like Ti directed to Tg for which one of the following three conditions satisfy. अब देखिए वो तीन कंडीशन क्या क्या हो सकता है सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर, जहां पे हमने V और E एक ग्राफ लिया है जिसमें स्टूडेंट क्रिएट ए नोड Ti arrow Tj if Ti ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स द रीड Q. सपोज कीजिए Q जो है वो ऑपरेशन से before Tj transaction executes write Q. Again I am repeating, हम एक ऐसा नोड क्रिएट कर रहे हैं Ti एरो Tj की तरफ, मतलब Ti का मतलब आप T1 एरो T2 भी हो सकता है, जहां पे Ti ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट रीड द Q ऑपरेशन Q बिफोर द Tj ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स राइट Q. Again students, create the node Ti arrow Tj if transaction executes write Q before Tj transaction executes write Q. And तीन ऑपरेशंस था यहाँ पे. फर्स्ट वन इज क्रिएट नोड Ti arrow Tj, जहां पे Ti हमने बताया ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स राइट Q बिफोर द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स रीड Q. Second one is Ti arrow Tj if Tj transaction executes read Q before Tj transaction executes write Q. And third one is create a node for Ti that arrow Tj, that is Tj transaction executes write Q before the Tj transaction executes write Q. तो दैट टाइम स्टूडेंट्स आपका जो इस शेड्यूल का जो डायग्राम है, टेबल डायग्राम है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा. शेड्यूल एस दैट विल बी लाइक वी कैन से टाइम T1, T2, T3, T4, T5 and T6. Here read A first one will be operated in that. देखिए ये ट्रांजैक्शन T1 का ऑपरेशन है. रीड A इक्वल्स टू सपोज कीजिए A प्लस 50 एंड आफ्टर दैट राइट A इधर इस ट्रांजैक्शन को खत्म होने के बाद T2 की ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ. T2 की ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, रीड A equals to A plus 100. Here it will be equals to A plus 100 and after that write है. तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हुआ, अल्टीमेटली A का वैल्यू 50 बढ़ गया, आफ्टर दैट ऑल्सो A का वैल्यू 100 बढ़ा है. दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट T1 कंप्लीट रीड एंड राइट हुआ है, T2 में भी कंप्लीट रीड एंड राइट हुआ है. तो हमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस का मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, हमारा राइट. जहां पे रीड है आफ्टर दैट राइट है, मैंने ऊपर मेंशन किया आपके लिए कि रीड आफ्टर दैट राइट क्यों ऐसा होना चाहिए, तो भी हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, एक नोड कंप्लीट किया गया है. या फिर राइट के बाद राइट हो सकता है, या फर्स्ट वन वाज राइट के बाद रीड भी हो सकता है. तो स्टूडेंट यहां हमने देखा है कि दोनों ट्रांजैक्शन सही शेड्यूल पे खत्म हुआ है. तो दैट मीन्स द ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक T1 is arrow directed to T2, and this is the precedence graph of schedule S. And the above precedence graph of schedule S contains two vertices, one is T1, another one is T2, and a single edge T1 arrow T2, because all the instructions of T1 are executed before the first instruction of T2 is executed. Obviously because T1 के work पहले हो गया था, after that T2 was executed. So that means
T1 एरो T2, मतलब पहला T1 का काम खत्म हुआ, जब T1 का ट्रांजेक्शन खत्म हो गया आफ्टर दैट T2 का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ. तो दिस इज ए प्रेसिडेंस ग्राफ. Here the two vertices are T1 and T2 and this one is the edge of arrow. ठीक है. If a precedence graph for any schedule contains a cycle, then that schedule is non-serializable. स्टूडेंट अब हम देखना चाह रहे हैं नॉन सीरियलाइजेबल कैसे होता है. अगर प्रेसिडेंस ग्राफ नहीं होता है और अगर देयर इज ए साइकिल मींस देयर इज ए लूप, अगर ऐसा किसी ग्राफ में लूप क्रिएट हो जाता है तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, नॉन सीरियलाइजेबल ग्राफ. दैट मींस देयर इज नो देयर इज साइक्लिक ग्राफ, देयर इज ए लूपिंग ग्राफ. And if the precedence graph has no cycle, then that schedule is called serializable schedule, जो हमने ऊपर अभी अभी देखा है. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नॉन सीरियलाइजेबल ग्राफ के बारे में, कैसे हो सकता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां एक सेकेंड टेबल मैंने शेड्यूल हमने डिस्कस किया है, जहां पे आपका जो है schedule S1 where time T1, T2, T3 and T4 and T5 we have taken, right? Transaction T1. स्टूडेंट ये T1 का ट्रांजेक्शन है, ये आपका T2 का ट्रांजेक्शन है. अब देखिए T1 की ट्रांजेक्शन में रीड ए, हमने कहा रीड ए के बाद राइट ए होगा तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, दैट विल बी कंसिस्टेंट. तो यहां कंसिस्टेंसी नहीं हुआ, ऑलरेडी T1 की रनिंग में T2 चालू हो गया और T2 को पहले बंद हो गया, यानी कि ट्रांजेक्शन T2 रीड ए एंड राइट ए हो गया. आफ्टर दैट T1 हैज कंप्लीटेड, यानी कि बीच में आपका पहले ट्रांजेक्शन में रीड ए चालू हुआ था, आफ्टर दैट T2 में रीड ए चालू हो गया और T2 का राइट ए पहले ही क्लोज हो गया, यानी कि ये ट्रांजेक्शन यहां कंप्लीट हो गया. बट ये जो ट्रांजेक्शन रनिंग चल रहा था वो यहां आके आपका एंडिंग हुआ है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको क्लियरिटी के साथ देखेंगे तो आप नीचे जो मैंने आपके लिए इसके ग्राफ डिजाइन किया है, तो इस ग्राफ को आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि द अबव, देखिए ये ग्राफ यहां पे आपका T1 की T1, इसका मतलब ये क्या हुआ, T1 से T2 की तरफ बढ़ा पहले, बिकॉज आपका जो है T1 चल रहा था पहले, सॉरी T1 चल रहा था पहले, T1 से आपका T2 की तरफ गया, दोबारा T1 से T2 की तरफ गया हमारी, और दोबारा T2 वाला जो चालू हुआ था वो फिर T1 में आके एंड हुआ, यानी कि T1 T2 से दोबारा T1 में चला गया. तो दिस इज अ साइक्लिक ग्राफ, मींस लूप क्रिएट हुआ आपके सामने यहाँ पे, राइट. तो ये जो लूप क्रिएट हुआ, इस केस में आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपके सामने वी हैव रिप्रेजेंटेड लाइक इन द अबव प्रेसिडेंस ग्राफ schedule S1 contains two vertices, one is T1 and another one is T2, and the edges like T1 arrow T2 and T2 arrow T1. In this schedule S1, operations T1 and T2 transactions are present in an interleaved manner. कहने का मतलब T1 पहले चालू हुआ था, T2 उसके बाद चालू होगा, कोई ऑपरेशन कोई ट्रांजेक्शन बीच में खत्म नहीं हुआ, बट उसके बाद फिर T2 चालू हो गया तो T1 को एंड करवाया. तो दिस इज एन इंटरलीव्ड मैनर. And the precedence graph contains a cyclic, and that's why schedule S1 is non-serializable. आपको ये रीजन बिहाइंड हो गया कि why, how, कि serializability कैसे होता है and non-serializability कैसे होता है. But students, one is important point here also. We can also do non-serializable graph to an serializable also. उसके लिए हमें कुछ टाइप्स की तरफ जाना पड़ता है. अगर कोई सीरियलाइजेबिलिटी में नहीं है, आप उसको सीरियलाइजेबिलिटी करना चाहते हैं, तो उसमें दो पार्ट में होता है. वन इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, अनदर वन इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी.
आप इसको दो पार्ट में, कहने का मतलब इस जगह पे आप इसको दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एक है T1 एरो T2, ओनली वन एरो, T1 एरो T2 और T2 एरो T1, दोनों में से कोई भी सीरियलाइजेबल आप इनमें से बना सकते हो, और जिनके लिए प्रोसीज्योर से कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी प्रोसीज्योर एंड व्यू सीरियल, मतलब आपका क्या होगा ये जो टेबल है आपके सामने, इस टेबल में क्या होगा, ये ऑपरेशन जो है बीच में नहीं रहेगा। रीड ए होने के बाद राइट ए का ऑपरेशन होगा, बीच में ये हट जाएगा, और ये ऑपरेशन कहां होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ऑपरेशन। तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि ये एंड में है। तो या तो आपका इस होने के बाद होगा ये ऑपरेशन, ये जो आपका ट्रांजेक्शन के बाद, और इसके बाद या फिर पहले होगा। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड T1 एरो T2 और T2 एरो T1। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने को एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद द सेकेंड ट्रांजैक्शन will have to be started. That is the concept of serializability. I think you have understood this topic clearly. If there is any queries, you can put up here. Thank you, students.